Hello everyone, welcome to our new lecture. Now in this particular lecture we are going to start our chapter number 1, that is Introduction to the Parliamentary System from 8th Standard Civics. Okay, so in this particular chapter we are going to see the form of government, okay, that is in existence in this world right now. Okay, we will see what kind of government is there in our own country India, and we will see different types of government and we will compare these two types of governments. Okay, so in this chapter we will learn the machinery or the system of government as given in the Indian Constitution. So each and every government, okay, for any country, okay, the functions of the government or the duties performed by the government are enlisted in the Constitution. So similarly, for the government which is running in India, okay, for the same government also, all the rules, all the functions, all the duties are enlisted in the Indian Constitution. Okay, and we must know that the Constitution of India is one of the biggest constitution in the world. Okay, considering the volume. So Indian Constitution, okay, it guides the government of India how to run the government or how to manage all the system, all the machineries within the country. Okay, so have we thought of this? What is the parliamentary system of government? Or India, we have prime minister, but why there is no prime minister in the United States of America? You may have a question that in India the higher authority is given with the prime minister. Okay, so the prime minister of our country, Shri Narendra Modi. Okay, he is considered as the one of the major power. Okay, one of the major person uh, who is going to perform his duties, who is going to administer the country. Okay, whereas in United States of America, okay, in USA, you will see the superior or the biggest leader in the USA is the president, okay, not the prime minister. So there is some kind of difference between the legislature, between the type of government within the countries. Okay, and answer to all the questions, we will get all the answer from this chapter. Okay, now the another question, what is the difference between a parliamentary and a presidential system of government? So we will get the answer of this question, okay, in this chapter. Now these questions will lead us to conclude that every country has a different form of government. Yes. So you will see there is some kind of differences, there is some kind of change between the government forms, okay, between the governments, okay, of different countries. Before we go ahead to understand different types of government systems, let us get information about the main branches of government. देखो, हर एक देश में जो गवर्नमेंट है उनके काम करने का तरीका अलग है। गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा नेता होगा वो कौन होगा वो भी डिपेंड करता है उस देश के ऊपर। ओके, जैसे कि हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है और ही इज द वन विच वी इलेक्ट, ओके, इन मेगा इलेक्शंस। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पावरफुल जो मिनिस्टर होता है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी जिसके पास होती है वो होता है प्रेसिडेंट। ओके, सो और वहां पर जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और हमारे देश में क्या है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। मतलब कुछ टाइप का जो डिफरेंस है, सॉरी, गवर्नमेंट टाइप्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। अब किस कैटेगरी में गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है, किस तरीके से हम उसे कैटेगराइज करते हैं गवर्नमेंट सिस्टम्स को, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। उसके पहले हमें कौन कौन से मेन ब्रांचेस होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में वो समझना होगा। देखो, तीन मेन ब्रांचेस होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में। एक होता है लेजिस्लेचर ब्रांच, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और तीसरा होता है जुडिशियरी ब्रांच। ओके, और ये तीनों जो ब्रांचेस हैं इनके फंक्शंस, इनकी ड्यूटीज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है वो ये तीन ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो देश है वो ये तीन ब्रांचेस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है। ओके, जो भी डेवलपमेंट होगा वो ये तीन ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि ये तीन ब्रांचेस में से अगर एक भी ब्रांच अपना फंक्शन, अपना काम ठीक से नहीं करती है, अपने ड्यूटीज को ठीक से परफॉर्म नहीं करती है, तो हमें देखने मिलेगा कि जो गवर्नमेंट होगी वो ठीक से, मतलब स्टेबल स्टेट में नहीं होगी, वो ठीक से कंट्री को रन नहीं कर सकती है। ओके, सो द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। देखो, लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है? कानून बनाना, टू मेक द लॉज।
द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड द जुडिशरी प्रोवाइड्स जस्टिस। देखो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होता है उसका काम क्या है कि लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो लॉ तैयार किए गए हैं, जो कानून तैयार किए गए वो फॉलो हो। इसके ऊपर ध्यान कौन रखता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच रखता है। और जो जुडिशरी है वो क्या करेगा? जस्टिस प्रोवाइड करेगा। The functions of these organs, their jurisdiction, and the limitations on their power and the interrelationship between these organs are decided by the Constitution. So, तीनों ब्रांचेस के क्या फंक्शंस है, क्या उनके पास पावर है, क्या लिमिटेशन है तीनों भी ब्रांचेस की, और तीनों ब्रांचेस के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप हमें देखने मिलता है, किस तरीके से तीनों ब्रांच इकट्ठे होकर के एक देश को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, ये सब कहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, इट इज द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ये तीनों ब्रांचेस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये तीनों ब्रांचेस के बीच में लिंकिंग है, वो डिसाइड करती है कि किसी भी देश में किस टाइप का गवर्नमेंट होगा। देखो जनरली देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स एंड दैट आर दोज आर पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो गवर्नमेंट सिस्टम टोटल दो टाइप्स के हैं, एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वही यूएसए में आप लोग देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सिमिलरली इन ब्राजील आल्सो यू विल सी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, बट इन यूके यूनाइटेड किंगडम्स यू विल सी parliamentary system. So these two types of government systems are in existence in the world. Okay, parliamentary and presidential system. Now let us try to understand the parliamentary system of government, one of the most important system, considering the fact that in our own country this system is in existence. Okay, so the parliamentary system of government developed primarily in England. Okay, so this type of system was developed in England. ये जो system है parliamentary system, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से शुरुआत हुई। ओके, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। इन इंग्लैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान लिखा गया है उसे क्या कहा जाता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो। ओके, द गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट ड्यूटी परफॉर्म करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ के ट्रेडिशंस के ऊपर, वहाँ के कस्टम्स के ऊपर, और जो भी कन्वेंशन वे होगा, ओके, कन्वेंशनल वे होगा, उसको वो लोग फॉलो करते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज evolved over a period of time. The parliamentary system of government, having its roots in parliament, is considered as a contribution of England. देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये इंग्लैंड से इवॉल्व हुई है, और इंग्लैंड ने ही ये टाइप जो है गवर्नमेंट सिस्टम का जो टाइप है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंग्लैंड ने दिया है बाकी सभी देशों को। ओके, इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इंडिया ने भी इसी टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। We can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. आप अगर ऑब्जर्व करोगे दोनों भी सिस्टम्स को, इंग्लैंड के सिस्टम को और इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम को, तो आपको ये समझ में आएगा कि दोनों भी गवर्नमेंट सिस्टम्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। ओके, मतलब एक तरीके से जो फंक्शंस परफॉर्म हो रही है गवर्नमेंट सिस्टम में वो सेम है। बट व्हेन लुक्ड एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट इन इट्स कंटेंट। लेकिन अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसको स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अलग है। ओके, इंग्लैंड पार्लियामेंट्री सिस्टम से। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के। सो द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके, द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो इंडियन पार्लियामेंट में टोटल तीन आपको डिविजन्स देखने मिलेंगे, एक है प्रेसिडेंशियल डिवीजन, फिर उसके बाद लोकसभा आता है और फिर राज्यसभा आता है। ओके, नाउ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स्ड। देखो पार्लियामेंट्री हाउस में कितने मेंबर्स होंगे लोकसभा के, ये क्या है? फिक्स होता है। और लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली हम जनता जो है, पब्लिक जो है,
किसी भी देश की, वो सिलेक्ट करती है, वो इलेक्ट करती है। ओके, इलेक्शन होता है और फिर हम लोग वोट देते हैं, एंड देन वी सी दैट द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा आर इलेक्टेड। Elections to the Lok Sabha are held at regular intervals. All political parties contest this elections. Okay, जितने भी political parties है वो ये election में हिस्सा लेते हैं. The party which gets more than half of the seat is considered as the majority party. जिस पार्टी को 50% से ज्यादा सीट मिलेगी लोकसभा की, वो क्या होगी? मेजोरिटी पार्टी होगी, और हम उसे विनर पार्टी डिक्लेयर करेंगे। द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो क्या करती है? फिर गवर्नमेंट तैयार करती है। Sometimes when no party gets a clear majority, some parties come together to form a majority and they can establish the government. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पार्टी को 50% से ज्यादा सीट नहीं मिलते, स्प्लिट देखने मिलता है हमें सीट्स में। ओके, लोकसभा की सीट में स्प्लिट देखने मिलता है, किसी भी पार्टी को ज्यादा नहीं और किसी भी पार्टी को कम सीट, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है कि दो तीन पार्टीज ग्रुप तैयार करती है, और फिर वो दो दो तीन जो पार्टी ग्रुप तैयार करेगी, जिसे हम लोग संगठन कहेंगे, तो वो क्या करते हैं? फिर वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोएलिशन गवर्नमेंट। ओके, ऐसी गवर्नमेंट जो दो तीन पार्टीज के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुई है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोएलिशन गवर्नमेंट बोलेंगे। ओके, कीप दिस इन माइंड। Now, in this way, candidates directly elected by the people become members of the legislature and the party in majority gets a chance to form the government. इस तरीके से जिसे हम इलेक्ट करते हैं, जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती है, ओके, फिर वो क्या करते हैं? अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और उस पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। ओके, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। Now he or she selects the candidates for ministerial positions from among his her colleagues. Okay, फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बाकी जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं उन्हें पोजीशन देता है। ओके, मिनिस्टर्स बनते हैं। हम हमें मालूम है जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ओके, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, whereas there are different ministers. Okay, अलग अलग मिनिस्टर्स हमें देखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ओके, देन फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर, ओके, निर्मला सीतारमन। देन वी हैव home minister Mr. Amit Shah. So in this way we have different ministers. Okay, now the prime minister and the council of ministers chosen by the prime minister together forms the executive in the parliamentary system of the government. फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में देखो मेंबर्स कौन होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके साथ बाकी जितने मिनिस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ओके, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर है, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर हो गए। जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी के सभी मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें एग्जीक्यूटिव के पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज, and as they are the members of the legislature they also have to fulfill responsibilities of the legislature. पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन्हें लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उन्हें भी वो फुलफिल करना होता है। ओके, now the prime minister and the council of ministers is responsible to the legislature for all their actions and policies. देखो जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो मिनिस्टर की काउंसिल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शंस और पॉलिसीज के लिए। ओके, जैसे कि बहुत सारे पॉलिसीज जो है वो इनैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कानून है जो इनैक्ट हो रहे हैं, और ये जो भी रूल्स, जो भी लॉज इनैक्ट होंगे, ओके, जो पारित होंगे जितने भी कानून, वो सभी के सभी उन सभी कानूनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर होगी। इट मीन्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर. It is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government. देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स है उन्हें डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना होता है? फुलफिल करना होता है। ओके, लॉज को इम्प्लीमेंट भी करना होता है
और उसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उन्हें भी फुलफिल करना होता है. Another distinct characteristic of the parliamentary system of government is collective responsibility. Decision taken by any ministry department is considered as the decision of the government. ये ध्यान में रखना है कि जब कोई सा भी मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, वो जो भी डिसीजन लेगी वो डिसीजन सिर्फ उस मिनिस्ट्री की होगी ऐसा नहीं कहा जाएगा. ये कहा जाएगा कि ये डिसीजन जो है वो पूरे गवर्नमेंट का है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर जो है अगर वो ये डिसीजन लेता है कि हर स्कूल में ओके हफ्ते में 3 बार स्पोर्ट्स के लेक्चर होंगे, तो ये मतलब क्या है कि ये डिसीजन सिर्फ उसका नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये कंसिडर किया जाएगा. ओके, एंड द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, और सारे के सारे मिनिस्टर्स को ये डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, फिर चाहे वो डिसीजन सही हो या फिर वो डिसीजन गलत हो. हालांकि इस केस में अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या फिर स्पोर्ट मिनिस्टर 3 लेक्चर्स को इनेक्ट करता है एक वीक में तो वो अच्छी बात होगी. लेकिन ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो किसी मिनिस्टर का जो रूल होता है या फिर जो उसका लॉ निकलता है उसके डिपार्टमेंट से वो कभी कभी गलत भी साबित होता है, और उस एक मिनिस्टर की जो गलती होगी वो सिर्फ उसको ही उसका सामना नहीं करना होगा, पूरे गवर्नमेंट को सामना करना होता है. In the next 2 chapters, we will see with examples how the principle of collective responsibility is brought into practice. Okay, हम लोग next जो chapters होंगे उसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से collective responsibility को प्रैक्टिस में लाया जाता है, किस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है. ओके, in the parliamentary system the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them. This means that the council of ministers remains in power till it enjoys the support or the confidence of the legislature. देखो, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब जिसे भी मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, उसके पास वो पावर तभी तक होगी जब तक उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का सपोर्ट है और उसके पास उनका कॉन्फिडेंस होगा. उसी टाइम उसी वक्त तक उसके पास ये सारी पावर होगी. ओके, टू बी द मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट. If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, it removes the executive from power by passing a no confidence motion against the executive. देखो, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को ये लगता है, लेजिस्लेचर को ये लगता है कि जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर अपने ड्यूटीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उस मिनिस्टर को निकलवा सकती है उसके पोस्ट से, उसकी पावर को छीन लिया जा सकता है. No confidence motion is an effective tool of keeping a check over the executive. Executive या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से किसी के ऊपर भी ठीक से ध्यान रखने के लिए और वो अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको उस ड्यूटी से बर्खास्त करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज सुप्रीम इंस्टीट्यूशन. देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या फिर जो लेजिस्लेचर होता है उसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट. देखो, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मतलब लोकसभा में जो भी मेंबर है, वो पब्लिक की डिमांड को इन फ्रंट ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट्री हाउस में रखते हैं, और फिर वो डिमांड पूरी किस तरीके से की जाएगी या फिर उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए ये सब वहां पे डिस्कस होता है. द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर. Since it is the house of the representatives of people and expresses sovereign authority of the people, it is considered as the supreme body. पार्लियामेंट्री हाउस को क्या कहा जाएगा? सुप्रीम बॉडी कहा जाएगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री हाउस होता है वहां पर लोकसभा के मेंबर्स बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं और उनका जो डिस्कशन है वो पब्लिक के तरफ से होता है. जो भी प्रॉब्लम पब्लिक को है, जो भी प्रॉब्लम सिटीजन्स को है, वो वहां पे डिस्कस किया जाता है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो वहां पर डिस्कस होता है. ओके, इस वजह से हम पार्लियामेंट्री हाउस को सुप्रीम बॉडी भी कंसिडर कर सकते हैं. नाउ वी विल गेट अ आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो क्यों अडॉप्ट किया है? देखो, इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजंस. जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रीजंस होंगे और उन रीजंस की वजह से इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया. देखो, द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल.
जो भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ। द ब्रिटिश रूलर्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो भी इसी सिस्टम के हिसाब से किसी भी देश के ऊपर रूल करते थे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। देखो आज़ादी की वजह से भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट किया गया। इंडियंस वर फेमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो हम पहले से इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट से फेमिलियर थे क्योंकि हमें मालूम था कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट रन करती है। Many discussions took place in the Constituent Assembly over the system of government। देखो कौन से टाइप का गवर्नमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करेगा ये डिसाइड करने से पहले बहुत दिनों तक डिस्कशन चालू थे। हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब वो सब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू सूट द इंडियन सिचुएशन। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है उन्होंने क्या किया कि थोड़े से चेंजेस किए पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ओके, और ये चेंजेस क्यों किए गए, ताकि वो इंडिया के लिए सूट हो, जो भी इंडियन आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से वो सही बैठे। Discussions and deliberations are an integral part of the parliamentary form of government. Keep this in mind that the discussions and the deliberations are an integral part of the parliamentary form of government। देखो ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट का, यहाँ पे डिस्कशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है और डिस्कस करने के बाद सभी मेंबर्स की राय जानने के बाद ही अगर रूल को इनेक्ट किया जाए, लॉस को इनेक्ट किया जाए। ओके, और क्या सही सिचुएशन होगा, क्या सही टाइप होगा, ये सब डिस्कशन करने के बाद ही डिसाइड होता है। Constitutions related to public welfare are discussed, sorry, questions related to public welfare are discussed in the legislature। Now members from the opposition party also take part in this discussions। देखो कि जब डिस्कशन होता है पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं होंगे, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों साइड का जो भी व्यू है वो समझना जरूरी है। अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट वेरेवर अप्रोप्रिएट, point out shortcomings in the policies and laws and put up studied arguments and questions etc। देखो तो अपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ खड़ी भी हो सकती है, सपोर्ट भी कर सकती है, या फिर कभी कभी जो पॉलिसीज में या फिर लॉज में जो कमी होगी वो गवर्नमेंट के सामने रखेगी। ओके, या फिर अगर पॉलिसी सही नहीं है तो वो उसका विरोध करेंगे, दे विल अपोज द पॉलिसीज। ओके, और देखो स्मूथ जो भी डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, वो स्मूथ होना जरूरी है। और दोनों भी मतलब पोजिशन पार्टी एज वेल एज रूलिंग पार्टी के सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए वो पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। ओके, so this is all about the parliamentary system of government। Okay, now let us see the presidential system of government। Okay, so presidential system of government can be said to be another important system of government। This type of system exists in countries such as United States of America, okay, and it is also in existence in Brazil, okay, it is also in existence in China, okay। So this type of system, that is presidential system of government, is existence in some countries। This system is different from the parliamentary form, the system in which the executive is independent of the legislature and as the head of the state the president is directly elected by the people is known as the presidential system of government। देखो ये जो सिस्टम होती है इसमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड नहीं करती। ओके, जो भी एग्जीक्यूटिव सिस्टम होगा गवर्नमेंट का उसके ऊपर सिस्टम का डिपेंडेंस नहीं होता है। और सॉरी, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव सिस्टम लेजिस्लेचर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है वो लेजिस्लेचर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। और जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, though the three organs are independent from each other, there are enough connections between them to work in harmony or coordination।
देखो तीनों भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों भी जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, दैट इज ओके, दैट इज प्राइम मिनिस्टर और द मेन, ओके, गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो, या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर हम लोग कंसिडर करेंगे, तो ये तीनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, ठीक से स्मूथ रिलेशन के साथ गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नाउ फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो क्या फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the legislature and the executive are not directly dependent on each other. Okay, legislature assembly और executive department जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर directly dependent नहीं होता। The houses of the legislature and the president are directly elected by the people। देखो लेजिस्लेटिव मेंबर्स को और प्रेसिडेंट को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करती है। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड एंड हैज लॉट ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग पावर टू इम्प्लीमेंट लॉज। देखो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है किसी भी लॉ को इनैक्ट करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। In spite of such a structure, the legislature and the executive keep a check on each other. This mutual control over each other can lead to a responsible government. देखो दोनों भी डिपार्टमेंट्स, दोनों भी ब्रांचेस एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद दोनों भी डिपार्टमेंट है, जो लेजिस्लेचर असेंबली और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है, वो एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखने का काम करता है, एक दूसरे को चेक करते रहता है। ओके, और इस वजह से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो मैक्सिमम टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स दैट आर फॉलोड इन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा। देखो मेन जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, लेकिन उसके अलावा और भी अलग टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम है जो हमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे देशों में देखने मिलती है। सेवरल कंट्रीज ओइंग टू देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेस हैव इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। हर एक कंट्रीज का जो कल्चरल या फिर कस्टम ट्रेडिशन जो भी है वो क्या है, अलग अलग होता है, और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के हिसाब से वहां पे आपको कुछ फर्क दिखने मिलेगा गवर्नमेंट के सिस्टम में। ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रूल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सो आप अगले चैप्टर में इंडियन पार्लियामेंट को ब्रीफली स्टडी करेंगे। Okay, so in this chapter we have seen what is parliamentary system and what is presidential system of government. Okay, what we have to keep in mind, we have to keep in mind the characteristics of both the forms of government, and we must know that parliamentary system of government is in existence in our own country India, whereas the presidential system of government is in existence in USA, United States of America. Okay, for this particular lecture you will have a homework, that is you have to complete the exercise of this chapter, and all these questions are very much important, okay, considering the examinations. So that's it. Thank you.